Yes, we have seen the markets that have shot up tremendously beyond our expectations. Well, Bank Nifty was lagging behind, and it looks like Bank Nifty is also caught up, and it's trying to give us some good flip on the upside. And that's what we are looking at the overall setup. The Nifty and the Bank Nifty are doing extremely well. But what I'm also seeing is that not much of the mid cap space which we expected to fire up has not been seen. So as the Nifty is nearing to a new high and Bank Nifty has already flashed a new high, we are not seeing some good retail participation yet. So yes, that would be an interesting sector to watch out for. But nevertheless, this week has definitely some good omens for Nifty and Bank Nifty, and the way they are firing up and the way they are holding out, it looks like Nifty would also join in the party and flash a new high. So overall prospects looks exciting, but then are the numbers saying the same thing, or are the chart setup saying the same thing? Along with NeoTrader, let's try and look at the index as well as do our weekly analysis to find out how can we make the entire scenario better and how can we put some perspective and list down some stocks for suitable trading action. All right. So let's go right in and check them out for what is seen on the charts as well as NeoTrader. So let me share my screen, and as I am sharing my screen here, you can see that the overall picture which you are getting, okay, the overall picture which you are getting from the charts of Bank Nifty. Let's go to Bank Nifty first because Bank Nifty was the one which gave us a good move in the last week. And you can see here that Bank Nifty has done well. It's managed to hold out the limitations which were causing it to probably stagnate at higher levels. And we can see here that on the weekly chart, right, on the weekly chart, Bank Nifty has managed to give a very positive closing. So this is an encouraging sign which we are seeing from Bank Nifty. And at higher levels, what we are looking at is a target towards the median line. You can see here the prices have been struggling at the pitchfork and it continues to be the same scenario. Yes, you can see here a zone of around 43,500. Well, when you take a look at the overall setup, the momentum indicators are also continuing to indicate some positive sign. We'll go and take some cues from NeoTrader and see what the NeoTrader has to tell us about Bank Nifty. So when you go into NeoTrader, I see that after a while, if you saw the last weekend analysis, Bank Nifty was in a neutral zone and not much of signals were flashing. But then Bank Nifty has done really well to move into a buy zone into from the momentum perspective, from the multi-day perspective, from the positional perspective. So it has gone into the buy zone, which is clearly a very positive sign as we head out into the next week, right? And when you take a look at the kind of indications which you are getting from the overall setup on a multi-day and positional basis, the Ichimoku score is also quite encouraging, which gives us an opportunity to engage into a buy on the intraday basis as well. So intraday is yet to catch up, but then soon the momentum is picking up on the intraday setup as well. On a higher time frame, Bank Nifty is definitely a very good buy candidate. It has been crossing important barriers at higher level, and it is definitely an encouraging sign. So अगर आप इस ओवरऑल सेटअप को देखेंगे, ओके, अगर आप इस ओवरऑल सेटअप को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो बाई जोन पे आ गया है बैंक निफ्टी, ये एक पहला कॉन्फिडेंस जोन है हमारे लिए। और उसके साथ साथ जब भी आप आकर देखेंगे कि ये जो सिनेरियो था एक्टिव सिग्नल्स, यहाँ पर लॉन्ग के सिग्नल्स बिल्कुल नहीं थे पिछले हफ्ते। या आप देख रहे हैं कि इंट्राडे में, मल्टी डे में, पोजिशनल में सब स्ट्रेटेजीज में लॉन्ग के ट्रेड्स फ्लैश हो रहे हैं। तो उसका मतलब है कि लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की जो जरूरत थी वो यहाँ पर आ गई है। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अगले हफ्ते
काफी अच्छा चलना चाहिए, और जो ओवरऑल सेटअप भी मुझे बता रहा है कि यहाँ से एक 1000 पॉइंट की रन हम आराम से देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में 1000+ पॉइंट्स की जो रेंज है बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं। और ये जो संकेत बता रहा है मुझे कि बैंक निफ्टी में आप अभी करंट लेवल और पुल बैक पर भी आप बाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इस संकेत के बारे में बात करना है एंड देखना है कि कौन से लेवल्स पर हम ध्यान देंगे, तो यहाँ चले आते हैं पिवट वैल्यूज की तरफ। और पिवट वैल्यूज पर देख के मुझे लग रहा है कि अब फिलहाल बैंक निफ्टी काफी कंफर्टेबली चल रहा है ओवर ऑल द इम्पोर्टेंट क्लस्टर जोन। सो ये रहा पिवट जोन, 42,000 का जो लेवल है। मैं मानकर चलता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी में आगे चल के। तो करंटली बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 42,150। और ये जो पिवट लेवल्स जो है यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 42,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन जो है पिवट लेवल पर इंट्राडे के लिए बनेगा। और करंटली इट इज हैविंग अ वेरी गुड मोमेंटम। तो अगर नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी को अगर सपोर्ट तोड़ना हो तो 41,750 यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट जोन मिल रहा है। यहाँ पर एक क्लस्टर जोन मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक क्लस्टर जोन बन रहा है यहाँ पे। और मैं मानकर चलता हूँ कि ये एक सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी के लिए पिछले नेक्स्ट हफ्ते के लिए। और ऊपर की तरफ काफी रूम है। और मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर ऊपर लेवल की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस होगा अराउंड 42,800। 42,800 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके बाद इंट्राडे के लिए 42,800 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप देखेंगे उसके बगल में ये एक मल्टी डे का भी रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जब ये 42,800 चले जाए, ऑलराइट, दैट विल बी आवर फर्स्ट टच पॉइंट। 42,800 will be your first touch point. So you can say that around 650 से लेके 750 एक जोन होगा जहां पर एक सप्लाई जोन हो सकता है। तो ये एक हमारा सप्लाई जोन होगा और ये हमारा डिमांड जोन होगा। सो ये रहे संकेत बैंक निफ्टी के। और अब हम बैंक निफ्टी के साथ अब आगे चलेंगे निफ्टी में। तो जब हम निफ्टी की चार्ट देख रहे हैं, ओके, निफ्टी की चार्ट देख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि मोमेंटम तो बढ़िया है, मोमेंटम बरकरार है। और मोमेंटम पर जब भी आप देखेंगे, ठीक है, मोमेंटम पर जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लैरिटी है कि यहाँ पर एक बुलिशनेस दोबारा आ रहा है। लेकिन जब भी आप इस प्राइस एक्शन को देख रहे हो तो यहाँ से उतनी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रही है मुझे, अनलाइक बैंक निफ्टी। क्योंकि ये जो लेवल्स है एट अराउंड 18,500 टू 18,600, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ऑन निफ्टी। सो इफ इट वेयर टू गो टू दीज लेवल्स यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस सम सप्लाई। सो you have to be very careful when market is going to head out into this level। और आपको काफी ध्यान देना चाहिए at this particular zone। और जब भी आप स्टॉक एनालाइजर में जाकर आप निफ्टी की गौर करेंगे, निफ्टी पर भी सेम सिचुएशन है कि द ट्रेंड इज पॉजिटिव, ट्रेंड इज हैविंग अ वेरी पॉजिटिव बायस। और उसकी जो सपोर्ट लेवल है, राइट, on the bank nifty we saw that the support levels were at 41,600 to 700, जैसे कि मैंने कहा था, that is a 600 is your second level of support, 800 is your first level of support। in the same way in the bank nifty, sorry, in the nifty 81,130 is your first level of support। उससे अधिक क्या सपोर्ट बन रहा है और क्या सप्लाई जोन बन रहा है वो हम जाकर देखेंगे। बट उसके पहले आकर देखते हैं कि यहाँ पर जो इंट्राडे, मल्टीडे और पोजिशनल में जो इचिमोकू का जो स्कोर है, स्कोर काफी बढ़िया है। और मल्टी डे के लिए एक अच्छा पॉसिबिलिटी बन रहा है इन निफ्टी। इन इंट्राडे it is better, and in positional it is yet to pick up। So in the bank nifty you had multi-day and positional on a better ground,
in Nifty, you are having intraday and multi-day on a better ground. This is what is the benefit of Neo Trader की यहाँ पे मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को देख सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है और उस प्रकार मैं काम कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिवट रेंज पे अच्छा एक प्ले है ऑन निफ्टी. इट इज हैविंग अ मूवमेंट अबव R3, so it seems to be a good multi-day play in Nifty. So we should definitely look at Nifty as well into the coming week. तो यहाँ पर अगर आप आकर देखेंगे कि ये जो BTST है और स्विंग है, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड्स फ्लैश हो रहे हैं और लॉन्ग ट्रेड्स बन रहे हैं हमारे निफ्टी में. तो ओवरऑल निफ्टी पर भी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है, बैंक निफ्टी पर भी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है. तो अगर आप नेक्स्ट हफ्ते के बारे में बात करेंगे तो हमें एक बुलिश बायस के साथ काम करना है. तो आकर देखते हैं कि क्या संकेत बन रहे हैं ऑन निफ्टी. और निफ्टी की चार्ट्स आप देखेंगे और निफ्टी की जो लेवल्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे. तो पहला एक मुझे मिल रहा है एक क्लस्टर जोन अराउंड दिस लेवल. तो 18,240 पे एक क्लस्टर जोन बन रहा है हमारा, जो ये हमारा एक फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा. और उसके बाद हमने बात की थी एट 18,150, राइट. 18,150 के बारे में हमने बात किया था, विच वॉज द TS लाइन. सो यहाँ पर आ रहा है आपको मल्टी डे में एक 18,150 आ रहा है, आपको यहाँ पर 18,175 आ रहा है और यहाँ पर 18,121 आ रहा है. तो अगर आप देखेंगे ये एक लेवल होगा आपका सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट. तो यहाँ पर एक क्लस्टर बन रहा है हमें एट 18,125 से लेके 18,175 का एक सपोर्ट जोन बन रहा है. तो जब आप इंडेक्स में काम करेंगे आपको एक जोन डिफाइन करना है और उस जोन में जब प्राइस आ जाए आपको जरूर काम करना है. जैसे कि मैंने बात किया था ऑन थर्सडे की एट अराउंड 18,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है. तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट करने के लिए. तो वहां से काफी बढ़िया मूवमेंट देखा हमने फ्राइडे को. और अब मैं देख रहा हूं कि अब सपोर्ट लेवल्स अब थोड़ी ऊपर आ गई है और ये जो है 120 18,125 से लेकर 18,175 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है. और उसके बाद और एक सपोर्ट है उसके ऊपर विच इज अराउंड 18,225 टू 250. तो ये दो लेवल जो है हमें ध्यान देना है और मार्केट्स में पुल बैक के साथ ही काम करना है, क्योंकि मार्केट एक बाय ऑन डिप, बाय एट करंट एंड बाय ऑन डिप अप्रोच के साथ आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बिकॉज द एंटायर मार्केट इज बुलिश बट वी आर नॉट हैविंग मच ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप देखेंगे मिड कैप के अगर आप इंडेक्स देखेंगे, मान लीजिए निफ्टी मिड कैप का जो इंडेक्स है फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे एक मोमेंटम नहीं है उसमें. और फिलहाल ये जो मोमेंटम ये जो चार्ट्स आप देख रहे हैं उसमें काफी क्लैरिटी नहीं है. और उसी की वजह से मैं मानता हूं कि ओवरऑल मोमेंटम इज bullish on the market, but we need some more participation from the mid cap space for us to fire on all cylinders. But nevertheless, market is on the bullish side. तो अब चलते हैं थोड़े स्टॉक सिलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से स्टॉक्स को हम गौर करेंगे. तो ये है हमारा कैमेरिया सेटअप, राइट. एज हमारा प्रैक्टिस है कि कैमेरिया सेटअप में जाएंगे और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमारे सामने दिख रहा है कि ये सारे स्टॉक्स है और कैमेरिया सेटअप में मैं पहले चूज करूंगा जहां पर सारे तीन डॉट्स ग्रीन हो. ओके, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट स्टॉक्स वेयर ऑल द थ्री स्टॉक्स आर ग्रीन एंड ऑल द थ्री स्टॉक्स आर रेड. सो यहाँ पर है मेरे पास ये पैनल जहाँ पर prices are above H4, prices are below L4. So what I'll do now is I will go and create a watch list. So I will create now a watch list. So let me go out there and let me create a watch list from here. So I'm going to add these stocks to my watch list. Okay, I'm going to add these stocks to my watch list. ये है मेरे stocks weekly
bullish stocks. Okay, these are the stocks. So I'm going to be adding these stocks to my watch list. ये नौकरी है, HDFC है, जिंदाल स्टील है, HDFC बैंक, ये सारे स्टॉक्स अच्छे चले हैं और इनमें तीनों सर्कल बुलिश है। ये देखिए माइंड ट्री, तो आईटी स्टॉक्स के भी थोड़े नाम आ रहे हैं। तो इन सब स्टॉक्स को मैं बुलिश लिस्ट में ऐड कर रहा हूं एज द फर्स्ट राउंड। Okay, this is my first round of activity where I am adding all the stocks to my bullish candidate so that when I am evaluating these stocks, okay, when I'm evaluating these stocks, we will be able to look at them in a clear manner. तो ये हम ऐड कर रहे हैं ऑन द बुलिश स्टॉक्स। ये सारे स्टॉक्स है जो बुलिश है और जिनमें तीन सर्कल्स बुलिश है, और ये सारे स्टॉक्स में ऐड कर चुका हूं ऑन द बुलिश साइड। यस, देयर आर सम बेरिश नेम्स एज वेल, बट देन आई विल बी लुकिंग एट द बुलिश साइड ऑफ द मार्केट। बेरिश नाम्स थोड़े हैं, वो ये है इंडियन होटल, इसे मैं अलग नाम दूंगा, इसमें होगा वीकली बेरिश, और ये सारे वीकली बेरिश में ऐड हो जाएंगे। ये होंगे वीकली बेरिश के नाम, क्योंकि आपको मार्केट दोनों साइड से देखना है और आपको चुनना है कि अगर इनमें से, ओके, इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अगर मिल जाए मोमेंटम के साथ ऑन दिस डायरेक्शन, so that is how you will participate. So basically now I created the watch list. One, we have got one bullish weekly and bullish bearish on the मंथली। तो मंथली बुलिश मंथली बेरिश का हमने लिस्ट क्रिएट कर दिया है, और उसमें से हमने देखा है कि जो वीक में है, जो मंथ में है और वीक में है, वो सारे स्टॉक्स हमने ऐड कर दिए हैं एक वॉच लिस्ट में। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा और चलूंगा कैंडलस्टिक डैशबोर्ड पे। ओके, कैंडलस्टिक डैशबोर्ड पर जाऊंगा और मैं चुनूंगा कि कौन है ऐसे स्टॉक्स, राइट। यहाँ पर मैं चुन रहा हूं on the weekly. All right, let me select the candlestick weekly and the candlestick daily. So now what am I going to do? I am going to add the weekly bullish. So ये रहा weekly bullish, okay, weekly bullish, but weekly bullish में कौन से stocks, okay, ये मैं select कर रहा हूँ week and I am going for the weekly bullish candidate. So उसमें से जिंदाल स्टील है, ऑलराइट, माइंड ट्री है, LTI है जिसका वीकली लॉन्ग लाइन कैंडल, लॉन्ग लाइन यानी लॉन्ग बॉडी बुलिश। So you will see here that I have got only three candidates on the bullish side, which is Jindal Steel, Mindtree, and LTI. So these three guys are bullish. All right. So when I've got only three names, which is Mindtree and LTI and Jindal Steel. So I have got only three stocks which are having a long line candle. तो अब मैं क्या करूंगा कि ये तीन मेरे पास लॉन्ग लाइन हो गए। अब मैं जाकर देखूंगा कि डेली में क्या सेटअप हो रहा है और डेली में मैं कैसे काम कर सकता हूं, तो वो मुझे जाकर देखना है। तो मैं अब चलूंगा इनटू द इचिमोकू डैशबोर्ड। Okay, I'll go into the Ichimoku dashboard. I will go here and I will select only the daily. I will go for close above cloud and I will go for CS above cloud. और यहाँ पर जाकर मैं फिल्टर करूंगा कि क्या ये नाम आ रहे हैं। देखिए, जिंदाल स्टील was one name, Mindtree is another name on the daily, और LTI is another name. So LTI, Mindtree and Jindal Steel सारे पैरामीटर्स सेटिस्फाई कर दिया इन्होंने। तो ये तीन स्टॉक के डेली सिग्नल इज ओके, सो इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय इचिमोकू एज वेल।
तो अब मैं चलूंगा इनटू माय RSI ट्रेंड्स और पता करूंगा कि वहां पर मोमेंटम कैसा है। और यहाँ पर भी मैं चुनूंगा डेली को, और यहाँ पर मैं जाकर देखूंगा अभी कि जिंदाल स्टील का क्या हाल है। तो ये रहा जिंदाल स्टील, और जिंदाल स्टील चार सर्कल बुलिश हो गए हैं। so soon it is going to reach a overbought zone। उसके बाद मैं चुनूंगा, आई विल गो एंड सेलेक्ट माइंड ट्री। सो माइंड ट्री में देखिए, माइंड ट्री में तीन सर्कल ग्रीन है, इसमें अब भी थोड़ा रूम है। तो माइंड ट्री विल बिकम नंबर वन, जिंदाल स्टील विल बिकम नंबर टू। देन अगला स्टॉक है LTI। सो LTI में भी तीन सर्कल ग्रीन है, यानी 30, 60 और डेली, और वीकली और मंथली में अब भी होना बाकी है, अब भी जगह है। तो माइंड ट्री और LTI 1 and 2, एंड देन जिंदाल स्टील। तो ऐसे हमारे तीन स्टॉक सेलेक्ट हुए हैं बेस्ड ऑन दी RSI। तो अब इसके साथ मैं चलूंगा और एक एडिशनल फिल्टर के लिए, वो है मेरा ADX ट्रेंड्स पेज, राइट। सो यहाँ पर थोड़े नाम है, ओके, यहाँ पर थोड़े नाम है, और यहाँ पर पावर ट्रेंड बेसिस पे हमें क्या मिल रहा है देखते हैं हम। तो जिंदाल स्टील ADX तो जरूर बुलिश है, बट वो पावर ट्रेंड मोड में फिलहाल नहीं। अब मैं जाकर देखूंगा कि माइंड ट्री पावर ट्रेंड में है। तो अब माइंड ट्री नंबर वन पे आ गया, जिंदाल स्टील हैज गॉन टू सेकंड, राइट। जिंदाल स्टील remains at third because it was Mindtree, LTI, and then it was Jindal Steel. Mindtree has now taken number one position. Let's go for LTI. So LTI is bullish, but it's only having a score of 1. So right now, based on my evaluation, okay, based on my evaluation, Mindtree is coming first, LTI is coming second, and Jindal Steel is coming third. So Mindtree, Jindal Steel और LTI, ये तीन स्टॉक्स एक बुलिश नजरिए से हमें देखना है। ऑलराइट, ये तीन स्टॉक्स हमें एक बुलिश नजरिए से देखना है। तो चलिए, ये रहा हमारा बुलिश स्टॉक सिलेक्शन। ऑलराइट, तो अब हम जाकर देखेंगे कि बैरिश में हमारे पास कोई स्टॉक्स मिल रहा है कि नहीं। तो अब हम दोबारा चलेंगे कैंडलस्टिक डैशबोर्ड पे, और कैंडलस्टिक डैशबोर्ड पर जाकर देखेंगे कि बेस्ड ऑन वीकली बेरिश, और ये उसका जो कैंडल है, ऑलराइट, उसका जो कैंडल जो है, उसका जो डेली कैंडल जो है, उसमें बेरिश चंबल फर्टिलाइजर और गुजरात गैस, ये दोनों स्टॉक बेरिश है। ओके, ये दोनों स्टॉक बेरिश है। तो ये दोनों स्टॉक अब इसका वीकली सेटअप देखेंगे और पता करेंगे कि लॉन्ग लाइन, लॉन्ग बॉडी कैंडल कोई आ रहा है कि नहीं। क्योंकि पहले हमने देखा वीकली ऑन द कैमेरिया, राइट, कैमेरिया बेरिश देखा, और अब हम आकर देख रहे हैं कि क्या कोई वीकली लॉन्ग लाइन बॉडी अगर बेरिश है कि नहीं। तो अगर वीकली बेरिश अगर नहीं है तो फिर हम आगे काम नहीं करेंगे, अगर वीकली बेरिश है तो फिर काम करेंगे, राइट। So now, for example, we selected bullish, right, and we saw that these are the names which are having weekly bullish candle, and then we went deep. So we are doing a multi-time frame analysis where we are selecting it based on the monthly, and then we are going to the weekly, checking on weekly candlestick and weekly cameria, and then we are going and checking on daily, getting a certification from Ichimoku. Then we are going and checking based on the मोमेंटम कंसर्न। सो ऐसे करते करते इस हफ्ते का रैंकिंग मिल गया है मुझे, राइट। तो इस हफ्ते का जो रैंकिंग है, तो इस हफ्ते का रैंकिंग है मेरे पास, नंबर वन इज माइंट्री, सेकंड है LTI, और थर्ड होगा जिंदाल स्टील, राइट। आई एम श्योर दैट आपको अच्छा लगा ये टाइप ऑफ एनालिसिस। अब हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट किया है इस वीकेंड एनालिसिस का, वो कैसे हम काम कर सकते हैं। इंडेक्स के बारे में तो मैंने डिस्कस
किया है आपके साथ। सो ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया हमें कि मार्केट्स ओवरऑल बुलिश है, हमें बुलिश मोमेंटम के साथ काम करना है, तो इस पर हम बने रहेंगे टिल वी मीट अगेन इन द आपको पता चल गया है कि मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है। सो अब हम अगली वीकली एनालिसिस तक, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक व्हाट आई शेयर्ड एंड इफ यू अंडरस्टूड हाउ टू गो अबाउट इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, please like, comment and subscribe to our YouTube channel and also leave a comment on this video कि कौन सा aspect of the analysis आपको अच्छा लगा और कैसे आप काम कर सकते हैं न्यू ट्रेडर के साथ और कैसे आप काम कर सकते हैं इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज राजा वेंकटरामन साइनिंग ऑफ।